Good morning, everyone. We were studying interference of light in previous class. We have studied about superposition principle and Young's double slit experiment. See, according to Young's double slit experiment, when two light waves of the same frequency and having zero or constant phase difference traveling in the same direction superpose on each other, the intensity in the region of superposition gets redistributed, becoming maximum at some points and minimum at some other points. So, a bright and dark fringe pattern means strips of bright and dark fringes are formed. This was the phenomena called interference of light. So, there was some distribution of energy, or you can say amplitudes of the waves, change in amplitudes of the wave at various positions. So this was the interference. So we have seen that some pattern, which is bright dark pattern, is formed. Here the bright one is called constructive interference. When this constructive interference happens, it happens when the crest of one wave is interfered with the crest of other, or trough of one wave is interfered with the trough of other, or superimposed on trough of other. So you can say when crest to crest or crest or trough is coinciding, or you can say interfering, then a bright position or the bright fringe will be formed. When one crest of the first wave is coinciding with the trough of the other, or vice versa, then there will be zero amplitude of the wave at that particular position. So it is constructive and destructive interference. Again, I am repeating, at the lines leading to the positions, crest of one wave falls over the trough of other, or the trough of one wave falls over the crest of other. The amplitude of the two waves get obviously subtracted, and hence the intensity becomes minimum or zero. This is called destructive interference. So on the observation screen, we usually obtain a number of alternate bright and dark fringes parallel to the two slits. This we have studied. Now I am making a rough diagram so that you can remind what was the observation. देखिए स्क्रीन जो थी, मान लीजिए this is the screen. All right. So if I say I am making red for representation of the bright fringe, ऑल राइट, एंड ये ऑब्जर्वेशन स्क्रीन है, मान लीजिए उसी पे शो कर रहा है, और इसी के बीच में डार्क फ्रिंजेस. देयर इज वन ऑब्जर्वेशन दैट द स्पेसिंग बिटवीन द फ्रिंजेस एंड द विड्थ ऑफ द फ्रिंज इज सेम, मीन्स स्पेसिंग इक्वल होती है और इनकी फ्रिंज विड्थ भी, यानी फ्रिंज की चौड़ाई भी सेम होती है. दिस इज द इंटरफेरेंस पैटर्न. ये ऑब्जर्व कब किया गया? जब दो पर्टिकुलर टाइप की वेव्स को इंटरफेयर कराया गया, मतलब सेम फ्रीक्वेंसी, फेज डिफरेंस कांस्टेंट या ज़ीरो, और उनका सेम डायरेक्शन में ट्रेवल होना चाहिए. तो अब हम आगे पढ़ेंगे कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. सो व्हाट वर द मैथमेटिकल कंडीशंस? कंसीडर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू वेव्स. These two waves are generated from two coherent sources. अभी हम coherent sources आगे पढ़ेंगे. Two waves generated from two coherent sources.
ऑब्वियसली द सोर्सेज आर कोहेरेंट। कोहेरेंट सोर्सेज के बारे में हम अभी आगे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। इफ the amplitudes, you can say if the displacements of the two waves, displacements y1 for the first wave है, इसके एम्पलीट्यूड है a1 sin omega t. Alright, this is the first wave. If the second wave is somewhat leading or lagging with respect to the first wave, there is some phase difference, but कैसा phase difference है ये? It is constant, it is not changing. Omega t plus phi means there is the phase difference of phi with respect to first wave, and this phi is constant, so phase difference is constant. All right, frequency is same for both, it is omega in both case, so frequency is same. All right, moving in same direction, having constant phase difference phi. ठीक है, where a1 and a2 are the amplitudes of the two waves. All right, now I am going to apply superposition principle here. So how do we apply superposition principle? By superposition principle, y is equals to the resultant displacement after interference is equals to y1 plus y2, the vector sum. All right, I am putting the values of y1 and y2 here. a1 sin omega t plus a2 sin omega t plus phi. All right, now I am going to expand this. It is equals to a1 sin omega t, the first one will not change. a2 sin a plus b is equals to sin a cos b plus cos a sin b. Sin a cos b plus a2 cos a sin b, cos omega t sin phi. No problem. Now putting sin omega t term one side and cos omega t term other side. ठीक है, साइन ओमेगा टी वाले को सबको एक साथ ले लो. सो इट बिकम्स a1 प्लस a2 cos phi taking sin omega t outside plus cos omega t, so it is a2 sin phi cos omega t. All right, so this is the expression. Now from here the trick starts to obtain the resultant amplitude. हमें क्या निकालना है? रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड. क्यों एम्पलीट्यूड निकालना है? बिकॉज when we know the resultant amplitude then we will decide. देखिए जो स्ट्रिप्स बन रही हैं वो क्या है? लाइट की अलग अलग इंटेंसिटी ही तो हैं, है ना. जब ब्राइट है इसका मतलब इंटेंसिटी ज़्यादा, जहाँ डार्क स्ट्रिप बनी इट मीन्स इंटेंसिटी इज वेरी निल और ज़ीरो और वेरी लिटिल. सो we need intensity, and as we know from our previous knowledge that intensity is actually proportional to the amplitude square. So when we will get the amplitude expression we can infer that intensity could be proved. So for amplitude, see amplitude, जरा हम इस वाली इक्वेशन को दिखाएं आपको. ये एक्सप्रेशन आप देखिए, एक डिस्प्लेसमेंट है, एक साइन आर्गुमेंट है यानी हार्मोनिक वेव दिखा रहा है कि ये हार्मोनिक वेव है साइन ओमेगा टी, एक ये है एम्पलीट्यूड. अगर हम कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन बना पाएं अपने
रिजल्टेंट वेव को, ये हमारी रिजल्टेंट वेव है जो किसके कारण आई है, जो आई है इंटरफेरेंस के कारण। अगर हम उसको उस तरह बना पाएँ इस वाली वेव को अपने जो रिजल्टेंट है, देन वी विल गेट द एम्पलीट्यूड। सो फॉर दिस, ये एक साइन टर्म है, एक कॉस टर्म है ना। अलग अलग साइन वेव और कॉस वेव दोनों चल रही है, और दोनों कॉस वेव साइन वेव मिल के भी एक अपने आप में हार्मोनिक वेव बना देती है। जैसा हमने पीछे देखा था कि एक वेव का एम्पलीट्यूड कुछ अलग था, दूसरे का अलग था, दोनों जब सुपर इम्पोज होती हैं तो चाहे एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है चाहे घट जाता है, यही होता था ना इंटरफेरेंस में। तो वो भी अपने आप में एक हार्मोनिक वेव होगी। द रिजल्टेंट वेव विल बी अ हार्मोनिक वेव। सो फॉर गेटिंग इट, हम एक ऐसा, सुनिएगा, हम एक ऐसा कैपिटल ए चूज करते हैं। चूजिंग कैपिटल ए एंड एक एंगल थीटा ऐसा चूज करते हैं। देखो यहाँ पे फाई यूज हुआ है, अभी तक थीटा नहीं यूज हुआ। चूजिंग ए एंड थीटा एज, ऐसा ए और थीटा चूज किया कॉम्बिनेशन कि जहां पे a1 प्लस a2 cos फाई कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई a cos थीटा, क्योंकि यहाँ cos है ना तो कोसाइन टाइप का चूज किया। थीटा और a की वैल्यू ऐसे चूज किया कि ये इसके बराबर हो। सिमिलरली a2 साइन फाई हमने चूज किया a साइन थीटा, मतलब a और थीटा ऐसा चूज कर रहे हैं कि a2 साइन फाई को हम a साइन थीटा के टर्म में लिख पाएं, और a1 प्लस a2 कॉस फाई को a कॉस थीटा के टर्म में लिख पाएं। ये a और थीटा हमारी चॉइस है। देन पुटिंग दिस वैल्यू हियर, y बिकम्स a कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस a साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। क्यों किया है, अब आपको कुछ कुछ दिख रहा होगा कि हम अपने पहली वाली इक्वेशन, दिस वन, इस टाइप का बनाना चाहते हैं। एक हार्मोनिक वेव हो, एक एम्पलीट्यूड हो, एक डिस्प्लेसमेंट हो। नाउ दिस एक्सप्रेशन कम्स, ए कॉस ए कॉमन ले लो, कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी। ये किसका एक्सप्रेशन है, साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी, a is omega t, b is theta, sin a plus b expression. So it is a sin omega t plus theta. So y is equals to a sin omega t plus theta. Omega t plus theta is the argument, a is the amplitude, and y is the resultant displacement. So now come to the तो देखिए, द रिजल्टेंट वेव इज अ हार्मोनिक वेव। इट इज अ हार्मोनिक वेव बिकॉज इट हैज सम हार्मोनिक्स, साइन के साथ है ना। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड। मैंने आपको पहले बताया वाई एम्पलीट्यूड, बिकॉज वी नीड एम्पलीट्यूड, एंड देन वी विल कैलकुलेट इंटेंसिटी, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द brightness and darkness or the positions of constructive and destructive interferences. So A, for calculating A we have this and this expression. देखिए यहाँ स्क्वायर करके अगर ऐड कर दें, then this cos square theta sin square theta will make 1 and this will get. So equation 1 and 2 by squaring and adding 1 and 2. So I am squaring and adding it so that we will get our final expression, a square cos square theta plus b square sin square theta. I am going to calculate. I am writing it in next page. So see here, a square cos square theta plus b square sin square theta, ये भी सही हो जाएगा। हाँ ठीक है, देखिए हो गया ना। नाउ दिस एक्सप्रेशन ऑन अदर साइड
it becomes a1 plus a2 cos phi का होल स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर phi. So this is the expression. All right. So a square, sorry, it is a square. A square is equals to a1 square. Yes, a1 square plus a2 स्क्वायर cos स्क्वायर phi, इसका हो गया, बस इसमें एक और एक टर्म आएगा 2a1 a2 cos phi and this comes a2 square sin square phi. Now put this and this together, so it becomes a2 square only. So a2 square and this becomes a1 square and this becomes 2a1 a2 cos phi. So this is the expression of the amplitude square. All right. Now as we know the intensity, or we can say intensity of the wave is proportional to amplitude square. All right. So when it is amplitude square, so we have actually calculated the amplitude square. So we can say इंटेंसिटी, अगर मान लीजिए रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी हमने I से रिप्रेजेंट किया, सो इट इज़ प्रोपोर्शनल टू, अगर मान लीजिए रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड हमने किससे कह सकते हैं, A से रिप्रेजेंट किया है ना, हमने A से रिप्रेजेंट किया है ना, तो A स्क्वायर, तो यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटाएं, इट इज इक्वल्स टू K, कोई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी A स्क्वायर. It is the resultant amplitude of for the it is the intensity for the resultant wave, for resultant wave. अब हमने जब K को कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एम्पलीट्यूड के लिए माना ही है, सो पहली और दूसरी वेव के लिए फॉर फर्स्ट वेव इंटेंसिटी, फॉर फर्स्ट वेव इंटेंसिटी फॉर फर्स्ट वेव I1 इज इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं K A1 स्क्वायर, क्योंकि A1 क्या है, पहली वेव का एम्पलीट्यूड है. वी हैव यूज्ड इट इन आवर फर्स्ट एक्सप्रेशन, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. सो इंटेंसिटी फॉर सेकेंड वेव I2 is equals to K A2 square. Now putting this values, this I1, I2 and this expression I, यहाँ हम इस एक्सप्रेशन में अपने A स्क्वायर जो अभी हमने निकाला, इट इज इक्वल्स टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos phi, इसमें मल्टीप्लाई कर दें. सबसे पहले इसको इस एक्सप्रेशंस का यूज़ करने के लिए हमने इसमें दोनों साइड K मल्टीप्लाई किया, इट बिकम्स K A स्क्वायर. ये K कौन सा है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी व्हेन एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम एम्पलीट्यूड. सो इट इज K A1 स्क्वायर प्लस K A2 स्क्वायर प्लस 2 K ही एक मल्टीप्लाई किए हैं, तो इस K को हम ऐसे बांट देते हैं, रूट के A1 बाहर है, रूट के A2 cos phi, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाउ पुटिंग दिस वैल्यूज, K A1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू I1, this equals to I, this equals to I1, this equals to I2 and this becomes, see here it is root K A1, it is actually 2 root I1 root I2, दोनों को कंबाइन कर रहे हैं. देखिए इसको साथ में ले रहे हैं, इसको साथ में ले रहे हैं. It is cos phi. This is the expression for intensity of the resultant wave. Intensity of the resultant wave is equals to intensity of the first wave plus intensity of the second wave. But here is
वन अनदर टर्म, देखिए दोनों की इंटेंसिटी जुड़ी लेकिन तीसरा एक टर्म और जुड़ गया, दिस वन। ये वाला जो एक्स्ट्रा टर्म है इंटेंसिटी का, इसमें पहली की भी कुछ इंटेंसिटी है, दूसरी की भी कुछ इंटेंसिटी है, और ये डिपेंड करती है उन दोनों की इंडिविजुअल इंटेंसिटीज पर और फाई पर। फाई इज द फेज डिफरेंस, जो कांस्टेंट फेज डिफरेंस अप्लाइड है उसके ऊपर डिपेंड करता है फाई। सो इट इज द इंटरफेरेंस पैटर्न। इसी को क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस पैटर्न कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इंटरफेरेंस पैटर्न ये हो गया। ये बताइए व्हेन विल दिस क्वांटिटी विल बी मैक्सिमम, आई विल बी मैक्सिमम, जब cos फाई का वाला टर्म जो हो इट बिकम्स +1, cos फाई अपने आप में +1 हो। तो उस दो कंडीशंस को हम नाम देंगे। पहला है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहां पे क्या बनी थी? ब्राइट फ्रिंजेस बनी थी, ब्राइट फ्रिंजेस बनी थी। ब्राइट फ्रिंजेस जो बनी थी उसके लिए है पुट cos फाई इज इक्वल्स टू 1, cos फाई इज इक्वल्स टू 1। अब देखिए जब यहां cos फाई इज इक्वल्स टू 1 रखते हैं देन दिस बिकम्स दिस 2√i1i2, यही केवल बचेगा और ये एक्सप्रेशन बचेगा। मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। i इज इक्वल्स टू i1 प्लस i2 प्लस 2√i1√i2, यही बचेगा। जरा हम इस ये केवल i1 है, इसको मैंने क्या किया? रूट लगाया दोनों में, और दोनों में बाहर एक स्क्वायर लगा दिया। क्यों किया? बिकॉज नाउ इट बिकम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बन गया। देन इट बिकम्स a1 मीन्स √i1 प्लस √i2, इसका होल स्क्वायर दिख रहा है ना? This is the expression for the resultant intensity, और ये स्क्वायर टर्म है तो पॉजिटिव होगा और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो यहाँ पे ये क्या मिलने वाला है? मैक्सिमा और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब ध्यान दीजिए कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंडीशन इज cos फाई इज इक्वल्स टू 1। सो cos फाई इज इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या है? cos फाई इज इक्वल्स टू 1 मीन्स फाई की वैल्यू क्या हो सकती है? फाई इज इक्वल्स टू 0 हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, 4 पाई हो सकता है ना? तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमास। ठीक है, नाउ ये तो फेज हैं, फेजेस हैं, फाई फेज डिफरेंस है ना। अब अगर मैं आपसे कहूँ पाथ डिफरेंस निकालो, तो आप पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला याद रख लीजिए। फेज डिफरेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, ये होता है ना। मैं आपको लिख दे रहा हूँ एक्सप्रेशन, आप खुद निकाल सकते हैं। फेज डिफरेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। तो आप अपने से इसमें से, जहाँ लैम्डा क्या है? वेव का वेवलेंथ है, ये आप अपने से निकाल सकते हैं। नाउ सेकंड कंडीशन इज द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। For destructive interference, this intensity I should be minimum. So in that particular equation, in this equation put cos phi such that this becomes minimum. For this to be minimum, cos phi to be minimum, it is -1 रख दें। cos phi is equals to -1 वाली जो कंडीशन है, it is the condition for destructive interference, -1. So I am again putting in similar way, it becomes √i1 whole square √i2 होल स्क्वायर। अब देखिए वहाँ cos फाई की जगह -1 रखेंगे यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा? -2 √i1 √i2, है ना। सो दिस बिकम्स
देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी ए माइनस बी होल स्क्वायर. This will be the expression for minimum intensity or the destructive interference. Now, as we are talking about destructive interference, so the condition is cos phi is equals to -1. इसको हम और क्या कह सकते हैं? phi could be पाई हो सकता है, 3 पाई हो सकता है, 5 पाई हो सकता है, and so on and so forth. Means odd integral multiple, all right, and starting from 1. ठीक है, और वहाँ क्या है? इवन इंटीग्रल जो कंस्ट्रक्टिव में है और उसमें 0 भी वैल्यू है. नाउ फॉर दी पाथ डिफरेंस हम क्या करें? पाथ डिफरेंस अगर निकालना हो तो फेस डिफरेंस यहाँ पे पुट कर दें. एक बार पाई रखो यहाँ पे, तो पाई कैंसिल आउट, लैम्डा बाई 2. सो पाथ डिफरेंस यहाँ मैं पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इट इज़ लैम्डा बाई 2. यहाँ दूसरी वैल्यू रखो, 3 पाई रखो, 3 पाई पाई कैंसिल आउट, 3 लैम्डा बाई 2, इट इज़ द पाथ डिफरेंस, एंड 5 लैम्डा बाई 2. सो we can say the resultant at a point is minimum when the phase difference between the two superposing waves is an odd multiple of pi, or we can say for in the form of path difference it is an odd multiple of lambda by 2. ऊपर वाले में देखिए पाथ डिफरेंस में लिख दे रहा हूँ, देखिए लिखना भूल गए, p इज इक्वल्स टू 0 होगा. एक बार 0 रख दो तो यहाँ पे इसी वाले फॉर्मूले में 0 रखो, यहाँ पे फेस डिफरेंस की जगह, इट बिकम 0. पाथ डिफरेंस क्या हो गया? 0. अगला पाथ डिफरेंस यहाँ पे कब आएगा? जब 2 पाई रखो, 2 पाई रख दो, 2 पाई कैंसिल आउट, लैम्डा हो गया क्या? लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. कह सकते हैं कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, और ये ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2. ये क्या है? ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2. और वो क्या है? देखो ऑड इंटीग्रल मल्टीपल निकालना है ना, तो n नहीं होना चाहिए. 135 है तो 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2. ये एक्सप्रेशन, दिस इज फॉर पाथ डिफरेंस इन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, this is for path difference in constructive interference. So we have to calculate this when derivation of constructive and destructive interference is asked. So in next class we will discuss about coherent and incoherent sources and the conditions for sustained interference or condition for obtaining two proper coherent sources. All right, thank you.